مجھے یقین ہے اور خدا یسوع مسیح میں میرا ایمان ہے کہ یہ پیغامات آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں. آمین. ہماری سیریز کیا ہے؟ بیٹے کے ہم شکل. کس کی شکل؟ ہم شکل. بیٹے کے ہم شکل، یعنی یسوع مسیح کے ہم شکل. خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل، یہ ہمارا ٹارگٹ، یہ ہمارا گول اور ہمارا مقصد. ہم جو نجات پا چکے ہیں، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم مسیح کی صورت اور مسیح کی شکل پر ڈھلنا شروع ہو چکے ہیں. دراصل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں، یا ہم ایمان لا چکے ہیں، یہاں ہم توبہ کر چکے ہیں، اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اب ہم تیار ہیں کہ آپ بیٹے کے ہم شکل بنیں. آمین. پریز دی لارڈ. نکالیے رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 29 آیت. جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. ہم کو اس نے جانا اور ہم کو اس نے مقرر کیا ہے. ہم کو اس لیے اس نے مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے کیا ہوں؟ ہم شکل ہوں. ہم جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم جنہوں نے توبہ کی ہے اور ہم جو نجات پا چکے ہیں، گویا ہم مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم نجات پائیں، اور یہ اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے کے کیا ہوں؟ بولیے، ہم شکل ہوں، ہم مسیح کی مانند ہوں. آمین. اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اور کن باتوں کے اوپر کے وسیلے سے ہم بیٹی کے ہم شکل ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو جو ہے وہ چند میسیجز کے ساتھ ساتھ آپ کو ابھار رہا ہوں کہ آپ ان باتوں میں بیٹے کے ہم شکل ہو سکتے ہیں. کن باتوں میں؟ یسوع مسیح جو کرتا ہے اس کو دیکھیں، جو اناجیل کے اندر بائبل مقدس میں اس کی بابت لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم بیٹے کے ہم شکل ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کا دستور تھا، یہ اس کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ عبادت خانہ میں جایا کرتا تھا. وہ بغیر کسی ناغے کے وہ کیا کرتا تھا؟ بولیے، عبادت خانہ میں شریک ہوتا تھا. اگر وہ یروشلم میں ہوتا تو وہ ہیکل کے اندر ہوتا. پھر اس کا دستور تھا، یہ اس کی عادت تھی اور اس کی یہ ہیبٹ تھی کہ وہ کیا کرتا تھا؟ بولیے، وہ دعا کرتا تھا. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیٹے کا ہم شکل بننا چاہتا ہوں یا میں بن رہا ہوں، تو ایک عبادت خانہ میں جایا کرتا تھا. پھر اس کا دستور تھا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ بولیے، وہ دعا کرتا تھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو عادت یا یسوع مسیح کے اندر جو بات ہے، اگر ہم بیٹے کے ہم شکل ہونا چاہتے ہیں یا بیٹے کی مانند بننا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ معاف کرتا تھا. آمین. اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. آمین. پھر یسوع مسیح کی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں دل کا فروتن ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں بیٹے کا ہم شکل ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا بنوں؟ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کروں، اپنے آپ کو کیا کروں؟ کم کروں، اپنے آپ کو پست کروں. لہٰذا یسوع مسیح کے یہ وہ عادات ہیں، یسوع مسیح کی وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے سے میں اس کی مانند بن سکتا ہوں. اگر یہ باتیں میری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو پھر میں اس کے بیٹے کا ہم شکل نہیں ہوں گا. اور آپ کو معلوم ہے، میں آپ کے اوپر یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب خدا باپ عدالت میں اپنے تخت پر بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کو دیکھے گا؟ وہ ہمیں دیکھے گا کہ کیا یہ بیٹے کی ہو بہو ہے کہ نہیں.
یہ مسیح کی مانند ہے کہ نہیں، اس کی شکل مسیح کی طرح کی لگتی ہے کہ نہیں، اس کا قد مسیح کے قد کے اندازے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کی شکل، اس کی صورت جو ہے، اس کی شبیہ جو ہے بیٹے کی مانند ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اگر ذرا سا بھی فرق پڑا تو آپ اور میں آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ہو بہو نظر آنا شروع ہوں، ہم ہو بہو اس کی طرح کے نظر آنا شروع ہوں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے بیٹے کے ہم شکل ہونے میں، بیکم کرائسٹ لائک، بیٹے کی مانند ہونے کے لیے ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے بیکم کرائسٹ لائک ان پیس۔ آمین، بیکم کرائسٹ لائک ان پیس، ٹھیک ہے، اطمینان میں، کس میں بولیے، اطمینان میں، سلامتی میں، صلح میں کیا ہو، بیٹے کی مانند ہوں۔ آمین، کس کی مانند ہوں، صلح میں، صلح میں، سلامتی میں، ٹھیک ہے، امن میں، اطمینان میں، یہ ساری باتیں ہیں، امن، سلامتی اور صلح۔ اس میں کیا ہونا ہے، ہم نے مسیح کی مانند ہونا ہے۔ آمین۔ پھر دوسرے کرنتھیوں اور اس کے 7ویں تیسرے باب اس کی 18ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح سے منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی تو ہم کیا ہوں گے، درجہ بدرجہ ہم اس کی جلالی صورت میں کیا ہوں گے، وہ بدلتے جائیں گے، اور آخر کار جب بیٹا ظاہر ہوگا، جیسا کہ جو ہے یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم کیا ہوں گے، اس کی مانند ہوں گے۔ آمین، ہم کس کی مانند ہوں گے، بولیے، اس کی مانند، یعنی مسیح کی مانند، یعنی بیٹے کی مانند ہوں گے۔ یہ کب ہوگا، جب جو ہے ہم درجہ بدرجہ اس کی صورت میں بدل جائیں گے۔ کس طرح سے، جو ہے وہ عبادت خانہ میں جانے میں، یعنی پبلک ورشپ کرنے میں، یعنی جو ہے خداوند مل کر خداوند کی عبادت کرنے میں، پھر جو ہے دعا کرنے میں، پھر معاف کرنے میں، پھر حلیم ہونے میں، فروتن ہونے میں، اور پھر اطمینان میں، سلامتی میں اور صلح میں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیز بہن بھائیو، غور سے سنیے، اگر کوئی شخص جو ہے بیٹے کا ہم شکل ہونا چاہ رہا ہے تو یہ خدا کا فضل ہماری زندگیوں کے اوپر ہوا ہے، یہ خدا نے ہمیں یہ شرف دیا ہے، یہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ پھر سے میں اس لیے کہتا ہوں، یہ پھر سے کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو خدا نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن اس نے خدا کی تصویر کو، خدا کی امیج کو جو ہے وہ اپنے گناہ اور جو ہے گناہ کے وسیلہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ اس کی تصویر مٹا دی، لیکن اب خدا نے پھر سے نسل انسانی کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ آمین، پھر سے اس نے ایک اور معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کر دیا ہے، کیا ہو، کہ ہم بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہن بھائیو، بیٹے کی مانند بننے میں سستی نہیں کرنی، بیٹے کی مانند بننے میں یہ لاپرواہی برتنی نہیں ہے۔ بیٹے کی مانند بننے کا مطلب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ بیٹے کی مانند بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لائسنس مل جائے گا کہ آپ داخل ہو جائیں گے۔ بیٹے کی مانند بننے کا مطلب ہے وہاں بڑے بڑے سکینرز لگے ہوئے ہیں، جو ہی آپ ان سکینرز کے سامنے جائیں گے تو وہ سکین کر لے گا، ہاں یہ بیٹے کی مانند ہے، اسے اندر کرو، ہاللیلویہ، اسے جانے دو، اسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے دو۔ اور ذرا سا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بھی، اور جو ہے کہا جاتا ہے 19-20 کا فرق ہے نا، 19-20 کا فرق نہیں، 100% جو ہے بیٹے کے ہم شکل ہونے کی ضرورت ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔
آپ جو ہے شلوم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسے عبرانی میں شلوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صلح، سلامتی، امن، جہاں پر جنگ نہیں، جہاں پر افراتفری نہیں ہے، جہاں پر بالکل جو ہے وہ سکون ہے، جہاں پر بالکل جو ہے امن ہے، اور بالکل کوئی جو ہے بے چینی نہیں ہے، بالکل کوئی بھی جنگ و جدل نہیں ہے. اس کو ہم شلوم کہتے ہیں، اس کو ہم پیس کہتے ہیں، اسے سلامتی کہتے ہیں، اسے صلح کہتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں. وہ کیا ٹھہریں گے؟ بولیے، خدا کے بیٹے ٹھہریں گے. آمین. کون ٹھہریں گے؟ بولیے، خدا کے بیٹے. چنانچہ خدا کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہے؟ پیس میکر ہیں. ایمین. وہ پیس جو ہے پیس میکنگ کرتے ہیں، وہ صلح جو ہیں، وہ سلامتی پیدا کرتے ہیں، وہ امن پیدا کرنے والے ہیں. آمین. ان کی زندگیوں کے اندر امن ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر سلامتی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر صلح ہوتی ہے. اور اسی سبب سے وہ کیا ٹھہریں گے؟ بولیے، وہ خدا کے بیٹے ٹھہریں گے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ پیس میکر ہے. ہاللیلویا. وہ امن پیدا کرنے والا ہے، وہ سلامتی پیدا کرنے والا ہے، وہ صلح پیدا کرنے والا ہے. اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ بولیے، سب سے بڑا ایشو پیس ہے، سب سے بڑا ایشو امن ہے. لوگ جو ہے مذاہب کے درمیان میں، جو ہے قوموں کے درمیان میں، ملکوں کے درمیان میں، گھرانوں کے درمیان میں صرف ایک ہی چیز کا جو ہے وہ ایشو ہے، میٹر ہے، معاملہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولیے، یہ ہے سلامتی. امن ہو جائے، اطمینان مل جائے، چین مل جائے. لوگ چین ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ امن ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ سلامتی ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ پیس ڈھونڈ رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بجٹ جس کے اوپر جو سب سے بڑا بجٹ جو بنایا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ سلامتی ہو جائے، امن ہو جائے. جو ہے ملکوں قوموں کے درمیان میں کیا ہو جائے؟ سکون ہو جائے، افراتفری ختم ہو جائے، جنگ و جدل ختم ہو جائے. یہی آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے. جنگ و جدل ختم کرنا چاہتے ہیں، سلامتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بڑے سے بڑا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، یا بڑی سے بڑی آرگنائزیشنز وہ بنائی جاتی ہے. مذاہب کے درمیان میں یا وہ آرگنائزیشنز بنائی جا رہی ہے، جیسے جو ہے انٹرفیتھ، اس میں سے ایک بڑا جو ہے یہ آرگنائزیشن اسی لیے ہے تاکہ مذاہب کی طرح ہم آہنگی پیدا کی جا سکے، یا ملکوں کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے. جو ہے یو این بنا دیا گیا کہ وہاں پر سلامتی کونسل یا دنیا کے یو این کا ایک حصہ ہے، یہ ہے وہ سلامتی کونسل، پیس کونسل. یہ ہے جب ملکوں کے درمیان میں پیس کونسل ہوتی ہے، پھر جو ہے لوکل لیول کے اوپر جو ہے وہ لوکل کونسلز ہوتی ہیں سلامتی کی. یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سلامتی کا، امن کا. اور گھروں کے اندر بھی یہی یہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے شوہروں بیویوں کے درمیان میں، بیٹے بیٹیوں کے درمیان میں، گھروں کے درمیان میں جو ہے کیا ایشو ہے؟ بولیے، صلح، سلامتی، امن. یہ کیا ہے؟ یہ ایشو ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. وجہ یہ ہے کہ بیٹے کی مانند نہیں ہے، بیٹے کے ہم شکل نہیں ہے. آمین. بیٹا کیا کرتا ہے؟ بولیے، بیٹا کون ہے؟ بیٹا وہ جو صلح کراتا ہے. بیٹا کون ہے؟ جو پرنس آف پیس ہے. آمین. اس کو یسایہ کیا کہتا ہے؟ بولیے، سلامتی کا. یسوع مسیح کون ہے؟ بولیے، سلامتی کا شہزادہ. یسوع مسیح بولیے کون ہے؟ اس دنیا کے اندر کون ہے جو اس بات کا اعلان کرے، یا اس بات کا یہاں کوئی یا لیڈر کہے کہ میں آئی ایم دا پیس میکر، میں پیس میکر ہوں، میں صلح سلامتی کا
पैगंबर हूं, मैं उसका जो है बहुत बड़ा लीडर हूं, सलामती का लीडर हूं, अमन का लीडर हूं। कोई है? देखिए यीशु मसीह की बाबत क्या कहा गया है कि ये क्या है? सलामती का शहजादा है। आमीन। ये जो है पीस लीडर है। Amen. The leader of peace, the prince of peace. Praise the Lord, the king of peace. Amen. और आपको मालूम है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या लेने के लिए आया है? इस दुनिया में उसके आने का क्या मकसद है? बोलिए, उसके आने का मकसद क्या था? यह सुलह कराना। आमीन। यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या था? बोलिए, सुलह कराने का, सलामती पैदा करने का, अमन पैदा करने का। जब सुलह की बात की जाती है तो गोया दो पार्टीज के दरमियान में सुलह कराना, दो फरीकों के दरमियान में सुलह कराना। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मकसद था वो सुलह कराने का था। आमीन। यीशु मसीह सुलह सलामती को राइज करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। आमीन। और ये जो है हैरान कुन बात है कि क्राइस्ट का जो मोटो था, क्राइस्ट का जो फोकस था, यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर आया है वो किस लिए है? सुलह कराने का। क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियान में दुश्मनी चल रही थी। इंसान और खुदा के दरमियान में यह दुश्मनी यह तेजी पकड़ रही थी और रोज बरोज, साल बसाल, सदियों से यह दुश्मनी रोज के ऊपर चल रही थी और कोई यह इस दुश्मनी को मिटाने के काबिल ही नहीं था। कोई उस के दरमियान में सुलह कराने के लिए कोई यह दरमियानी भी नहीं था कि कोई खुदा और इंसान के दरमियान में सुलह करा दे। और जरूर था कि कोई ऐसा यह दस्तावेज पैदा की जाए, कोई ऐसी दस्तावेज बनाई जाए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जो इंसान और खुदा के दरमियान में सुलह का यह दस्तखत जब वो कर सके। यही कुछ होता है ना, सुलह और सलामती को पैदा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, दस्तावेज तैयार की जाती हैं और जब जो टेबल टॉक होती है तो दरमियान में सिग्नेचर्स किए जाते हैं कि अब हमारी और तुम्हारे दरमियान में क्या है? वो सुलह है। सुलह का मुआहदे यह वो तय किए जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कई मुआहदे हुए हैं। अब जब रूस और यूक्रेन के दरमियान में जंग चल रही है और जब ये रुकेगी तो इनके दरमियान में सुलह का मुआहदा होगा। जो है मुल्क जो है इनमें शामिल होंगे और वो सिग्नेचर्स करेंगे कि भाई ये इन बातों के ऊपर, इन जो शराइत के ऊपर क्या किया जाएगा? हम सुलह कर लेंगे। दुनिया के अंदर सुलह सलामती के लिए क्या किया जाता है? वो शराइत जो है वो मुकर्रर की जाती है। चाहे खुदा और इंसान के दरमियान में भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हुआ है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है सुलह की खुशखबरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सुलह की खुशखबरी जहां उसने डॉक्यूमेंट दिया है कि लो इसे बांटो कि खुदा और इंसान के दरमियान में सुलह हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। ये सरेआम जो है इसकी मुरादी होती है, ये सरेआम इसका जिक्र होता है कि सुलह की खुशखबरी को जो है हमें दिया गया है। इफिसियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़िए। I praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sir. इफिसियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत से, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है। He is our peace. वो हमारी क्या है? बोलिए, वो सुलह है। to become Christ like in peace. यीशु मसीह की मानद बनिए किसमें? सुलह में। वो हमारी क्या है? बोलिए, सुलह, रिकॉन्सिलिएशन। इसे रिकॉन्सिलिएशन भी कहा जा सकता है, सुलह, सलामती। ठीक है, पीस के लिए रिकॉन्सिलिएशन भी यह है कि सुलह हो गई है, सुलह के लिए रिकॉन्सिलिएशन, सलामती, सुलह, अमन, चैन। हालेलुया।
वो क्या है बोलिए? वो हमारी सुलह है जिसे दोनों को क्या कर लिया? एक कर लिया। उसने क्या कर लिया? दोनों को एक कर लिया। तुम जो दूर थे, ठीक है, तुम जो क्या थे बोलिए, अब यीशु मसीह के खून के सबब से क्या हो गए हो? नजदीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसे दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे, मकूफ करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। दोनों को क्या दिया है बोलिए? क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास क्या होती है? रसाई होती है। अजीज बहनों भाइयों, गौर से सुनिए, सुलह वो हमारी सुलह है और उसने सुलह की खुशखबरी जो है वो हमें वो दी है, हमारी और तुम्हारी। आमीन। हमारी और तुम्हारी। तुम जो दूर थे, तुम जो नजदीक थे, दो या यूनानी और जो है वो यहूदी, दो जो यूनानियों यहूदियों के साथ भी यह है खुदा की दुश्मनी, यूनानियों के साथ भी क्या है? खुदा की दुश्मनी। लेकिन खुदा ने क्या किया है? यह बेटे को भेजा, सुलह का शहजादा इस दुनिया के अंदर आया है। उसने क्या दिया? आमीन। क्या कर दिया उसने बोलिए? दुश्मनी को मिटा दिया। और फिर उसने क्या? यह हमारी बाप के साथ सुलह करा दी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा और इंसान के दरमियान दुश्मनी चल रही थी। खुदा और इंसान के दरमियान में जो है जुदाई की दीवार थी, इतनी मोटी दीवार थी, कोई इसको तोड़ नहीं सकता था, कोई इसे गिरा नहीं सकता था, कोई इसको जो है कोई पार नहीं कर सकता था। बड़ी कोशिशें की गई हैं। खुदा ने शरीयत भी दी, शरीयत दी, लेकिन उसका ओल्ड जो है वो रिएक्शन हो गया, बल्कि जो है वो और बड़ी दीवार बन गई। दी शरीयत थी कि क्या हो सके, ये क्लोज हो सके, ये करीब आ सके, इनके साथ सुलह हो जाए, इनके साथ सलामती का मुआयदा हो जाए, अमन मुआयदा हो जाए। शरीयत देकर ये भी डॉक्यूमेंट खुदा ने जो है वो दिया इंसानों को। ये सिर्फ यहूदियों के लिए था, शरीयत सिर्फ यहूदियों के लिए थी। लेकिन क्या था? ये डॉक्यूमेंट जो है वो उनके गले पड़ गया और जो है वो बारीक दीवार थी, उससे ज्यादा मोटी दीवार बन गई। जो है वो छोटी, ये पतली दीवार थी, लेकिन फिर क्या हुआ? ये मोटी दीवार बन गई और इतनी बड़ी मोटी थी कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता था। लेकिन हालेलुया, क्राइस्ट आया। आमीन। सुलह सलामती का क्या आया बोलिए? शहजादा आया। उसने क्या किया है? इस दीवार को क्या किया है? तोड़ा। क्या किया बोलिए? तोड़ा। आमीन। किसको तोड़ा उसने? जुदाई की दीवार को तोड़ा। कैसे तोड़ा? आपको कहां नजर आता है कि तोड़ना या तोड़ा? उसे कहां पर तोड़ा है? उसे कहां पर तोड़ा? मैं आपको बताता हूं, सलीब पर तोड़ा नहीं। सुनिए, जब जब जो है वो रोमी जो है वो उसकी जो है हथेलियों पर, उसकी जो हाथों पर जो है कील ठोंक रहे थे, तब तब जो है दीवार हिलती थी। जब जब जो है उसके मुंह के ऊपर थूका जाता था, तब तब दीवारें टूटती थी। तब जब जब उसके मुंह के ऊपर तमाचे मारे जा रहे थे, तब तब ये जुदाई की दीवार जो है वो क्या कर रही थी? उसमें दरारें आ रही थी। गत्सेमनी बाग में दरारें आ गई। हालेलुया। जब उसका पसीना बड़ी बड़ी बनकर, खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था, जब उसका बदन टूट रहा था, जब उसका बदन फट रहा था, तब तब ये जुदाई की दीवार भी टूट रही थी। यह है क्राइस्ट जो हमारी सुलह बना है। सुलह ऐसे नहीं हुई है, सुलह के लिए जो है बदन को तोड़ा गया है, उसको धक्के मारे गए हैं, उसको जोर जोर से धक्के मारे गए हैं, उसको मार मार कर तोड़ा गया है। आप हैरान होंगे कि ये जुदाई की दीवार कैसे टूट गई। ये जुदाई की दीवार को तोड़ने के लिए क्राइस्ट को तोड़ा गया है।
क्राइस्ट को पीटा गया है और वो जो है उसको या लहूलुहान कर दिया गया है। उसका जो है बदन से जो है बदन जो है टूट रहा था, बदन को जो है वो जो है तमाचों के साथ, कोड़ों के साथ, कांटों के साथ जो है वो कीलों के साथ जड़ दिया गया है, सलीब उठाकर ताकि जो है उसके ऊपर वजन डाला गया है ताकि क्या किया जा सके, जुदाई की दीवार को तोड़ दिया जाए। हालेलुया। वही हमारी क्या है बोलिए, सुलह है। और ये सुलह कैसे हुई है बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और इसके सबब से दोनों को एक तन कर बनाकर खुदा से मिलाए। आमीन। उसने खुदा से मिलाने के लिए अपने बदन को पेश किया है। उसने जो है इंसान को खुदा के साथ मिलाने के लिए क्या किया है, अपना खून बहाया है। Praise the Lord. Become Christ-like in peacemaking. Amen. Become Christ-like in peace. सुलह सलामती में जो है वो अमन में, चैन में, शलोम में मसीह की मानद बनी है, जिसने क्या किया है, सुलह के लिए, सलामती के लिए, एक होने के लिए, जो है वो मिलाने के लिए अपने बदन को दे दिया है, अपने खून को दे दिया है, अपने सर को दे दिया है कि यहाँ पर कांटों का ताज रख दिया जाए, अपने बदन को या उसे कोड़ों के हवाले कर दिया है ताकि दीवारें टूट जाएं और जो है राह साफ नजर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुलह सलामती के लिए जान देनी पड़ती है। यीशु मसीह ने जो है ये सुलह और सलामती के लिए जान दी है। सलामती के लिए उसने क्या किया है, अपने बदन को तोड़ने वालों के हवाले कर दिया है। इस तरीके के साथ जुदाई की दीवारें टूटती हैं, इस तरीके के साथ सुलह होती है। आमीन। सुलह कैसे होती है बोलिए, आज दुनिया में सुलह सलामती को पैदा करने के लिए कत्लो गारत की जाती है। तरीकाकार देख लीजिए, यह है वेपन्स, यह है वो हथियार, यह है वो क्या किए जाते हैं, हथियार दिखाए जाते हैं, डराया जाता है, सुलह कर लो। बंदूक की जो है वो नोक के साथ क्या किया जाता है, वो सुलह कराई जाती है। हथियार दिखाकर सुलह सलामती को वजूद में लाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब का इंतखाब किया है। हालेलुया। उसने सुलह के लिए किसका इंतखाब किया है, उसने सलीब का इंतखाब किया। उसने सुलह के लिए क्या कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। आमीन। अपनी तलवार क्या कर। आपको बताऊं कई जगहों के ऊपर क्या होता है, जब दो पार्टी सुलह के लिए बैठती हैं तो अपने साथ साथ हथियार भी लेकर आती हैं कि कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वहीं पर ठा ठा ठा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, उसने कहा कि अपनी तलवार पतरस, अपनी तलवार म्यान में रख। हालेलुया। मैं तो अभी के अभी जहां 12 तुमन जहां फरिश्तों को भी बुला दूं, इनका पता भी ना नजर आए कि वो कहां पर से गायब कर देंगे, लेकिन मैं जो है सुलह के लिए खून दूंगा। मैं जो है दीवार को तोड़ने के लिए अपने बदन को हवाले कर दूंगा कि ये तोड़ा जाए, ये टूटेगा तो वो टूट जाएगी। आमीन। सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है जो सुलह के लिए जो है अजीब सा हथियार इस्तेमाल करता है। ये अनोखा सुलह जो है, ये अनोखा पीस मेकर है जिसके पास ये अजीब सा हथियार है, और इस हथियार को सलीब कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, इस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जो है कत्लो गारत करने वाला, वो सलीब को देखकर क्या करता है, वो भाग जाता है। हालेलुया। वो अपने सारे हथियार भी निकाल ले, वो अपने सारे हथियार भी निकाल ले, वो सारी दुनिया के हथियार इकट्ठे कर ले, लेकिन सलीब को देखकर वो दुम दबाकर भाग जाता है। आमीन। माय डियर, हम किस तरीके के साथ यह सुलह और सलामती को पैदा कर सकते हैं।
आज दुनिया के अंदर जो है वो किस तरीके के साथ जो है कत्लो गारत है, किस तरीके के साथ ये लड़ाई झगड़े हैं, किस तरीके के साथ तफरके और जुदाइयां हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। घरों के अंदर बहनों भाइयों के दरमियान में, माँ बाप बेटे बेटियों के दरमियान में, शोहरों बीवियों के दरमियान में या कलीसियों के दरमियान में किस कदर लड़ाई झगड़े तफरके पैदा किए गए हैं, या किस तरीके के साथ ये चीजें ये पाई जाती हैं। लेकिन अजीज बहन भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या हम बेटे की मानद हैं? क्या हम जो है उसके बेटे के हम शक्ल हैं? हमारा टारगेट क्या है? बोलिए, हमारा टारगेट क्या है बेटे की मानद बनने का? क्या टारगेट है? बोलिए। हमारा इस जमीन के ऊपर वजूद क्यों है? हमने क्यों निजात पाई है? बोलिए। हम निजात याफ्ता कहलाते हैं। इस निजात याफ्ता होने का मकसद क्या है? बोलिए। कि हम बेटे की क्या हो? बोलिए, मानद हो। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. साहब आपने ये चलाना नहीं है, ये रहने दें। अब गौर से सुनिए। अगर हम चाहते हैं कि हम बेटे की मानद बने, अगर हम ये चाहते हैं कि बेटे के हम शक्ल हों, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें जो है वो बेटे की तरह सुलझो होना होगा। हमें बेटे की इमारत क्या करना होगा? सलामती को अपनी जिंदगी के दिखाना होगा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अगर हम बेटे की मानद बनना चाहते हैं तो वो बेटा तो सुलह का शहजादा है। अगर हम बेटे की मानद बनना चाहते हैं तो वो क्या है? वो तो सुलह है। उसका टाइटल क्या है? ही इज आवर पीस। वो क्या है? वो तो हमारी सुलह है। वो तो सुलह कहलाता है। उसका नाम सुलेमान है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो तो जो है वो सुलह कराने वाला है। वो तो खुदा का बेटा है। चनाचे हमें मसीह की मानद किस तरह बनना है? अगर मैं पीस मेकर नहीं हूं, अगर मैं सुलह और सलामती और इत्मीनान को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखता हूं, अगर मेरी जिंदगी के अंदर अफरा तफरी है, अगर मेरी जिंदगी के अंदर जुदाई है, अगर मेरी जिंदगी के अंदर बेचैनी है, अगर मैं जो है वो दरमियान में नहीं आता हूं, अगर मैं अपने आप को जो है वो दो को क्लोज नहीं करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं बेटे की मानद नहीं हूं। मैं बेटे की मानद किस तरह से हो सकता हूं? बेटे ने क्या किया है? खुदा और इंसान के दरमियान में क्या की है? बोलिए, वो सुलह कराई है जो नामुमकिन थी, उसे दुश्मनी को मिटाया है। अब गौर से सुनिए, अगर हम दुश्मनी को मिटाते हैं तो फिर हम बेटे की मानद हैं। अगर हम यह दुश्मनियों को अपनी जिंदगियों से दूर करते हैं, जिसका मतलब क्या है? बोलिए, अगर हम दुश्मनी को नहीं मिटाते हैं, अगर हम जो है दुश्मनी को पाल रहे हैं, अगर हम जो है वो अफरा तफरी को पाल रहे हैं, अगर जुदाई को पाल रहे हैं, अगर दीवारें खड़ी करने वाले बन रहे हैं, ऐसी जुदाई की दीवारें बनाने वाले हैं, ऐसे मुमार हैं, ऐसे मिस्त्री हैं, ऐसे मजदूर हैं जो ईंट इकट्ठी करते हैं, दीवार जो है और जो है वो गाला या सीमेंट इकट्ठा करते हैं, मटीरियल इकट्ठा करते हैं,
और साथ को और को मिलाकर, पूरे घर को मिलाकर, बेटे बेटियों को मिलाकर, शौहर बीवी और बच्चे मिलकर क्या करते हैं? दुश्मनी को पाल रहे हैं, दूसरे के खिलाफ दुश्मनियों को पाल रहे हैं। ईमानदारों के दरमियान में भी ये चीजें पाई जाती हैं। कोई ईंट लगा रहा है, कोई सीमेंट लगा रहा है, कोई रेत बजरी इकट्ठी कर रहा है, और कोई तो यह मैसन बना हुआ है। ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं जिसके जरिए से क्या हो रहा है? या अफरा तफरी हो रही है, बेचैनी हो रही है, बीमारी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, या ब्लड प्रेशर या वकू के अंदर आ रहा है। इसकी सारे रीजन ये है कि हम बेटे की मानव बनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उसके बेटे के हम शक्ल होने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे आसमान की बादशाही में जब मैं दाखिल हूंगा, जब मैं जो है वो उस दरवाजे पर खड़ा हूंगा, वो स्कैनर जो लगा हुआ है वो देखेगा मैंने तो यह एक बहुत बड़ी जुदाई की दीवार बनाई हुई है। वो मुझे देख लेगा कि मैंने दुश्मनी पाल रखी है। वो देख लेगा कि ये तो यह साथ को और मिलाने वाला ममार है, यह जुदाई पैदा करने वाला ये यह लीडर है। चुनाचे ये क्या करेगा? भाई तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, यहां तो सुलह जो दाखिल होते हैं, यहां पर तो बेटे के हम शक्ल दाखिल होते हैं। वो कहेगा मैंने बदरूहें निकाली, वो कहेगा मैंने बड़े गीत गाए, मैं तो गीत लिखता था, मैं गाता था, मैं गॉस्पेल सिंगर था, मैं एक अच्छा प्रीचर था, मैं अच्छा टीचर था, मैं अच्छा जो है वो ईमानदार था, मैं दैयकी देता था, मैं गीत गाता था। अजीज बहनों भाइयों, वो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। वो ये स्कैनर ने ये नहीं देखना तू कितने गीत गाता था, वो ये नहीं देखेगा स्कैनर या आसमानी स्कैनर क्या करेगा। वो जो है वो बादशाही के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, वो देखेगा कि ये गीत गाता था, ये कलाम सुनाता था, ये जो है बदरूहें निकालता था, ये शिफा का काम करता था, व्हाटएवर यू आर डूइंग। वो उसको इससे कोई यह फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ेगा कि ये दीवारें कितनी तोड़ता था। आमेन। ये दुश्मनी को कितना दूर करता था, ये सुलह जो कितना था, ये इसकी शक्ल मसीह के साथ मिलती कि नहीं मिलती। वो ये बेटे का हम शक्ल है कि नहीं है, ये बेटे की मानंद है कि नहीं है। बेटे की मानंद क्या करते हैं? दीवारें तोड़ते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को फाड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे को खेमों को जो है वो जोड़ने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक शायद हमने सलीब का नजारा नहीं किया है, अभी तक कलवरी का पूरा नजारा हमारे सामने नहीं है कि वहां पर कैसे जो है खुदा और इंसान का मेल हुआ है, और इसके लिए खून बहाना पड़ा है, इसके लिए जो है कीमत चुकानी पड़ी है, इसके लिए जो दुख तकलीफ मुसीबत सहना पड़ी है। हमें अभी तक जो है ऐसी तकलीफ और मुसीबत तो सही नहीं पड़ी है जिसमें खून बहाना पड़े। सिर्फ जो है बातों के तीर अभी चले हैं, इसको खत्म कर कर बेटे की मानव बनने के लिए तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की तालीम क्या है, गौर से सुनिए। आप जाग रहे हैं? आमीन। जरा हाथ लाइए, जरा थोड़ा मारिए, जरा हथौड़ा मारे, जरा हथौड़ा। अच्छा थोड़ा मारिए, ऐसे करे, थोड़ा मारे। दरअसल ये दिल में मारने की जरूरत है, ये इधर नहीं मारने की जरूरत, ये इधर मारने की जरूरत है। यहाँ पर पत्थर बने हुए हैं, यहाँ पर जो है वो पहाड़ बने हुए हैं। दरअसल जो है ये थोड़ा कहाँ पर मारने की जरूरत है? बोलिए, दिल के ऊपर मारिए, ताकि क्या हो जाए? टूट जाए, रेजा हो जाए। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 21वीं आयत। कलीसिया में कोई बुलंद आवाज के साथ पढ़े, 5वां बाब उसकी 23वीं आयत। मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगा के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी
अपनी नजर गिराए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बस अगर तू कुर्बान गाह पर है, कुछ शिकायत है, ज्यादा शिकायत नहीं बल्कि क्या है, थोड़ी सी शिकायत है। कितनी शिकायत है बोलिए? ऐसी कितनी शिकायत है? कुछ शिकायत है। तू क्या कर, तू वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे। ये नहीं कि मैं तेरी नजर को जो है वो रद्द कर रहा हूं, मैं तेरी नजर को पसंद करता। तू अच्छा है कि तू नजर लेकर आया है, ठीक है। तू गीत गाने के लिए आया है, ओके, दैट्स वेरी गुड। तू दाइया की लेकर आया है, दैट्स वेरी गुड। तू अपनी नजर लेकर आया है, दैट्स वेरी गुड। तू बड़ी खिदमत करने के लिए यहां पर हाजिर हुआ, दैट्स वेरी गुड। खुदा यीशु मसीह कहते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे यहां पर अभी छोड़ दे। पहले क्या कर, तू वही कुर्बान गा के अपने नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। आमीन। अजीज बहन भाइयों, मैं पहले से बता चुका हूं, खुदा यीशु मसीह को, खुदा को इससे गर्ज नहीं कि आप गीत गाने के लिए आ रहे हैं, आप चंदा डालने के लिए आ रहे हैं, आप जो है दयकी देने के लिए आ रहे हैं, आप खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। उसको ये सारी चीजें ये अच्छी लगती हैं क्योंकि ये उसी ने जो है वो इम्प्लीमेंट की है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये तू कर, लेकिन इससे पहले अगर तुझे शिकायत है उसे दूर कर। आमीन। चुनांचे यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जाकर तू कील अपने जो है हाथ पर ठुकवा दे। उसे यह नहीं कहा कि जा तू जाकर जो है से अपना वो सेहरा ताज पहन ले कांटों का, या जाकर जो है वो नेजा खा, या जाकर जो थूक जो है अपने मुंह के ऊपर जो है वो फुकवा, या तेरी दाढ़ी नोची जाए, तू ये कम करा। नहीं, उसे शिकायत का जिक्र किया है, उसे गोली खाने के लिए नहीं कहा है। आमीन। उसने गोली खाने के लिए नहीं कहा है, उसे शिकायत दूर करने के लिए कहा है। आमीन। अजीज बहन भाइयों, इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर समझने की जरूरत है कि मैं जो है बेटे की मानद हूं या नहीं हूं, मैं बेटे का हम शक्ल हूं या नहीं हूं। इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करने की जरूरत होगी। अगर जरा सी भी यह चीज हमारी जिंदगी की अंदर रह गई तो हम आसमान की बादशाही से वो दूर हो जाएंगे। आमीन। इसलिए क्राइस्ट ये दावा देता है, यीशु ने क्या कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। वो कौन सा इत्मीनान जो दुनिया दे नहीं सकती है। दुनिया लड़ाई झगड़ा करती है, दुनिया तफरका पैदा करती है, दुनिया जुदाई पैदा करती है। मैं अपना इत्मीनान देता हूं, मैं अपनी सुलह तुम्हें देता हूं, मैं अपना अमन तुम्हें देता हूं, मैं अपना चैन तुम्हें देता हूं। अगर किसी के पास मसीह की सुलह है तो वो क्या होगा, वो गीत गाता हुआ, प्रस्तुत करता हुआ भाई के साथ सुलह और सलामती के साथ रहता होगा। कई दफा कलीसियाओं के अंदर यह भाइयों बहनों के दरमियान में इख्तिलाफात पाई जाती हैं। लेट यह उसको रिमूव देम, यह उसको दूर कीजिए और क्या कीजिए कि एक दूसरे के साथ यह प्यार मोहब्बत के साथ, ताकि नजरें जो है खुदावंद के हुजूर में मकबूल हो, हमारा गीत गाना खुदावंद के हुजूर में मकबूल हो, हमारा प्रस्तुत करना खुदावंद के हुजूर में मकबूल हो, हमारी हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहन भाइयों, पीस के लिए गौर से सुनिए, पीस के लिए, सुलह के लिए किसने पहल की? क्या इंसानों ने पहल की? पीस के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? वो पहल की है। क्या पहल की? वो जहाँ तख्त पर बैठा हुआ था, वो खुदा के बराबर बैठा हुआ था, और इस पीस के लिए, इस सुलह के लिए उसने क्या किया है? अपने आप को नीचा कर दिया। ये लास्ट टाइम मैं बता रहा था, उसने ह्यूमैनिटी को पसंद कर लिया, वो पस्त हो गया, वो इंसान के मुशाहबा हो गया, ताकि खुदा की तरफ से और इंसानों की तरफ से क्या कर सके? नुमाइंदगी कर कर सुलह की खुशखबरी का डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। आमीन। अजीज भाइयों भाइयों, सुलह के लिए पहल होती है, जब सलामती के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए पहल होती है, और इसके लिए ओहदा छोड़ा जाता है, इसके लिए ऊपर से नीचे आया जाता है। यीशु मसीह ऊपर से नीचे आया है। आप कहां पर खड़े हैं? मैं कहां पर खड़ा हूं और आप कहां पर खड़े हैं? यह देखने की आज जरूरत होगी। यीशु मसीह तो ऊपर से नीचे आ गया। आप कहां पर खड़े हैं? आप किस चोटी पर
اوپر ہیں, जिस चोटी पर भी हैं, आपको नीचे आना होगा, फिर सुलह होगी. Praise the Lord. कई दफा ये कहते हैं कि वो आएगा तो मैं सुलह करूंगा, मैं क्यों जाऊं. ठीक है, लेकिन यीशु मसीह, गुनाह किसका था? क्या खुदा जो है वो खुदा ने गुनाह किया? क्या यीशु मसीह ने गुनाह किया? नहीं, वो तो जो है इंसान ने गुनाह किया. गुनाहगार वो था, उसको आने की जरूरत थी, लेकिन क्या था, वो तो कभी भी नहीं आया, लेकिन वो ही नीचे आ गया. अजीज बहनों भाइयों, हो सकता है कि यह है मैंने नहीं किया, किसी और ने किया. लेट यह है वो क्या हो, ज्वाइन योर सेल्फ. अपने आप को एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. इससे क्या होगा, हम बेटे की मानद बन, यह सूरत हमारे अंदर ढलना शुरू हो जाएगी. प्रेज द लॉर्ड. आपको मालूम है हमें मेल मिलाप की खिदमत दी गई है. रोमियो के खत के अंदर क्या कहा गया है, हमें मेल मिलाप की खिदमत सौंपी गई है. कौन सी खिदमत हमारे पास है? हर एक मसीही के पास कौन सी है, कौन सी खिदमत है? बोलिए, मेल मिलाप. अगर मैं पास्टर हूं लेकिन मेरे पास एक और भी खिदमत है, और वो कौन सी खिदमत है? बोलिए. अगर आप मेंबर हैं तो आपके पास कौन सी खिदमत है? बोलिए. आप भी जो है वो मेल मिलाप जो है की खिदमत आपके पास है. लिहाजा हर एक मसीही ये एम्बेसडर ऑफ पीस है. ठीक है, वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, वो अमन का सफीर है इस दुनिया में. यह चर्च या वो पीस जो है वो पीस का क्या है, वो एम्बेसडर है. हमारे पास सुलह की खुशखबरी है. गौर से सुनिए, इस दुनिया के अंदर लास्ट बातें हैं. इस दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसकी दूरी, इसकी ये खत्म कैसे हो सकती है? कौन सा चारा है, कौन सा वे है, कौन सा तरीका है कि ये सारी चीजें खत्म हो सकती है? अगर आप सुलह की खुशखबरी को आम कर देंगे. आमीन. अगर सुलह की खुशखबरी को आम कर दिया गया तो फिर आपकी इर्द गिर्द गिरदोनवा में यह मुल्कों कौमों के अंदर क्या आ जाएगा? अमन आ जाएगा. इसलिए इस दुनिया के अंदर, गौर से सुनिए, जिनके पास सुलह की खुशखबरी है, उन जगहों के अंदर, उन एरियाज के अंदर, उन मुल्कों के अंदर क्या है? सलामती है. और जहां पर यह सुलह की खुशखबरी आम नहीं है, जहां पर सुलह की खुशखबरी को जो है वो रोका जाता है, जहां पर सुलह की खुशखबरी को के ऊपर जो है वो बैन किया जाता है, वहां पर अमन सलामती नहीं है. वहां पर जो है आपको लड़ाई झगड़े तफरके नजर आएंगे, वहां पर आपको बरकत नजर नहीं आएगी, वहां पर आपको तलवार नजर आएगी, वहां पर जो है बेचैनी नजर आएगी. इस दुनिया का हाल, इस घरानों का हाल, जो है वो उम्मतों का हाल, वो क्या है? बोलिए, वो सुलह की खुशखबरी है. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मसीह ने क्या किया? जो यहूदी यूनानी दोनों को खुदा के साथ क्या कर दिया? मिला दिया. आमीन. वो सिर्फ दो को एक कर दिया है. बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ठीक है, एक से क्या है वो? दो. ठीक है, बेहतर. एक से दो बेहतर है, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती है. यही सुलह है अजीज बहन भाइयों. ठीक है, हम तन्हा वो क्या करता है? कभी जो है वो गर्म नहीं होता, तन्हा कभी आसूदा नहीं होता. तन्हा गिर जाए तो क्या होता है? बोलिए, वो पड़ा ही रहता है. लेकिन अगर दो हैं तो क्या होता है? एक गिर जाए तो दूसरा क्या करता है? उसे. जो सुलह नहीं कराती हैं, जिनकी जिंदगी में सलामती नहीं है, वो लोनलीनेस का शिकार है, वो तन्हा है, वो गिर जाएगा, वो गर्म नहीं होगा, वो आसूदा नहीं होगा. इसलिए दुनिया के अंदर तन्हाई क्यों पाई जाती है? क्योंकि पीस नहीं है. लोग क्यों तन्हा हो रहे हैं? क्यों लोग जुदा हो रहे हैं? इसलिए कि पीस नहीं है, या यूं कह लीजिए बेटे की मानद बनने का फुकदान है, या बेटे की मानद नहीं बन रहे, या बेटे की हम शक्ल नहीं है. इस सबब से क्या हो रहा है? लोग तन्हा हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियों की जुदाइयां आ रही हैं, और गिरे पड़े हैं और कोई उठाने वाला नहीं है. वो घुट घुट कर मर जाएंगे. तन्हा शख्स घुट घुट कर मर जाएगा. वो
एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा, लेकिन क्या करने की जरूरत है? बोलिए, तेरी डोरी जल नहीं टूटती। उसने जो यूनानी थे, जो दूर थे, जो नजदीक थे, उन सबको क्या कर लिया है? मिला दिया है। हालेलुया। जो दूर थे, जो नजदीक थे, जो अपने भी नहीं थे, उन सबको से इकट्ठा कर कर खुदा के साथ मिला लिया। आइए बेटे की इमानत बनिए। हालेलुया। सुलह की खुशखबरी सुनाने वाले उल्टी स्लीव लेने के लिए तैयार हैं। सुलह की खुशखबरी को सुनाने वाले वो हर तरह की जो है दुख तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। इसलिए आइए सुलह की खुशखबरी को आम कर दें, ताकि जिंदगी के अंदर क्या हो? खुशी, शादमानी आ जाए। जो तन्हाई का शिकार हैं, जो गिरे पड़े हैं और जो घुट घुट कर मर रहे हैं, उनको जो है सुलह की खुशखबरी की जरूरत है। खुदा और इंसान के दरमियान में सलीब खड़ी हो गई है, और इसके दरमियान में ये सिग्नेचर खून के साथ यीशु मसीह ने ये अहद बांध दिया है। ये साइन हो चुके हैं, ये सिग्नेचर कर दिए गए हैं, और जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है द पीस गॉस्पल, गॉस्पल ऑफ पीस। हालेलुया। आइए इस गॉस्पल ऑफ पीस को, सुलह की खुशखबरी को इतना आम कर दें कि कोई तन्हा नजर न आए, बल्कि मिलकर अपने खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तिश और उसकी सताइश करें। आमीन। अपने सरों को झुकाएं।